Beta, this is the one of the question paper for the pre-board exam of one of the school. Even I don't know which school is that. So one of the student has sent. Okay. So all this, the time allotted and the partition and all, everybody knows. This same as a specimen paper. So we will start discussion starting from the question number 1. So section A, question number 1 is here. So the first question happens to be what type of inheritance is not supported by Java? What kind of inheritance is not supported by Java? So your answer is multiple inheritance. Multiple inheritance is absolutely right. And in place of for implementing this thing, we have interface in Java. We do this thing using interface. Multiple inheritance is not there. Fine. Which keyword is used to invoke the variable and method of the base class? Which keyword is used to invoke the variables and the methods of the base class? The answer is super keyword. Okay. Or the super function. If you want to call the constructor of the base class, we use super function. If we have a method or this thing, data of the base class to be accessed from the derived, we use super dot variable name, super dot base class method or super dot derived class method. So these two questions are from inheritance. Then there's a program given with reference to this code. We have to find the output, taking the value of n is 5 and p as 3. Fine. So you can find out the value. Before I discuss over it, you can just find it out. Taking n as 5, value function. N is 5, p is 3. And for this p equal to 0 is false. Then we'll go down to this. And do this n into means 5 into, then it will call value function. And the value function L will remains as it is and p will become 2. In the next iteration, n is 5, p is 2. Again, base case is false. So it will be 5 into value 5 comma n minus 1. Sorry, p minus 1. So p की वैल्यू घट के हो गई 1. फिर 1 के लिए भी p की वैल्यू 1 के लिए बेस केस फॉल्स है तो 5 इंटू वैल्यू इट इज p माइनस 1 0 हो गया. अब 0 के लिए p की वैल्यू 0 के लिए रिटर्न 1 करेगा. इट विल रिटर्न 1 टू दिस प्रीवियस कॉल. 1 और 5 मल्टीप्लाई होके उसकी प्रीवियस कॉल के जाएंगे 5 और 5 मल्टीप्लाई होकर उसकी प्रीवियस कॉल पे जाएंगे 25. 20 और 5 और 5 मल्टीप्लाई करके हमको मिलेगा 125. सो रिजल्ट इज 125. एंड दिस फंक्शन इट इज इवन दो इट इज नॉट आस्क व्हाट इट इज डूइंग, दैट इज इट इज फाइंडिंग n टू द पावर p. फाइन, इट इज फाइंडिंग n टू द पावर p. Power, right. So next question is, write a statement in Java to check whether the given string begins with another string or not. अच्छा, 4 क्वेश्चन मैंने एक साथ दे दिए, एक एक करके आंसर करते जाएंगे. So पहले का आंसर ऐसा चेक करने के लिए एक फंक्शन होता है स्टार्ट्स विद. ठीक है, वेदर गिवन स्ट्रिंग का नाम नहीं दे रखा है और किस स्ट्रिंग को सर्च करना ये भी नहीं दे रखा है, तो हम कोई बात नहीं, मैं लेता हूं सेंटेंस में स्टार्ट्स विद W इज कैपिटल वर्ड. ठीक है, तो ये स्टार्ट विद फंक्शन क्या करेगा इस सेंटेंस में, कॉलिंग स्ट्रिंग है. ठीक है, कॉलिंग स्ट्रिंग में क्या करेगा, आर्ग्यूमेंट स्ट्रिंग जो भी हमने दे रखी है उसको सर्च करेगा. अगर कॉलिंग स्ट्रिंग इस आर्ग्यूमेंट स्ट्रिंग से स्टार्ट हो रही है तो इट विल रिटर्न ट्रू, अदरवाइज इट विल रिटर्न फॉल्स. सेकेंड क्वेश्चन, हाउ लीफो स्ट्रक्चर इज डिफरेंट फ्रॉम फीफो स्ट्रक्चर. ठीक है, लास्ट इन फर्स्ट आउट और फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में क्या डिफरेंस है. सो लास्ट इन फर्स्ट आउट
is implemented with the help of stack. First in, first out is implemented with the help of queue. This is one difference we can say. How it is implemented. So the name itself suggests you can define that LIFO. In the LIFO structure, what will happen? The element which is stored last will be read first, and in the FIFO structure, it is following first in, first out. It means the element which is inserted first, it will be read first. Or we can say one more thing. LIFO में there is only one end from the data can be stored and read. ठीक है? This is open from only from one end, and FIFO is open from two end. One end is used to write the data. Another end is that is called rear end. Another end from where we can read the data is called front end. तो rear end से write कर रहे हैं, front end से read कर रहे हैं. So this is one difference. What is the range of character data type? Range जैसे क्वेश्चन आने की रहती नहीं है, तो ये मैं एक्सप्लेन कर दिया, राइट नहीं कर रहे हैं. 0 से 65,535. ठीक है. कैरेक्टर टाइप या जावा में हम कह सकते हैं जावा इज फॉलोइंग यूनिकोड कैरेक्टर सेट विच ऑक्यूपाइज 2 बाइट्स एंड इट इज रिप्रेजेंटिंग 65,536 कैरेक्टर. तो वो 0 से अगर काउंट करेंगे तो 535 तक ही आता है. क्वेश्चन इज ऑन कंपेयर टू फंक्शन का आउटपुट पूछा गया. कंपेयर टू फंक्शन क्या करता है? कैरेक्टर बाय कैरेक्टर कंपेयर करता है. ठीक है. कैरेक्टर बाय कैरेक्टर कंपेयर किया तो यहां CAB आया, इधर भी CAB आया. ठीक है. तो जहां पे कैरेक्टर मिसमैच हो, 1 by 1 फिर कंपेयरिंग कैरेक्टर, जहां पे मिसमैच होता है उस कैरेक्टर का एस्काई कोड का डिफरेंस को रिटर्न करता है. राइट. सो हियर देयर इज अ परफेक्ट मैच और उसके बाद ये स्ट्रिंग एंड हो गई. सो व्हाट इट विल डू, इट विल फाइंड द डिफरेंस ऑफ लेंथ. Length of the first string is 5, the second string is 3. So the answer will be 2. ठीक है. तो दो स्ट्रिंग को कंपेयर कर रहे हैं और वो बिल्कुल आइडेंटिकल है. एट वन पॉइंट ऑफ टाइम पहली खत्म हो गई या दूसरी खत्म हो गई तो उनके लेंथ का डिफरेंस है. पॉजिटिव नेगेटिव डिपेंड्स ऑन लेंथ विल बी द रिजल्ट ऑफ कंपेयर टू. पाथ एंड हाइट ऑफ द बाइनरी ट्री. सच क्वेश्चन ऑल्सो मे नॉट कम, क्योंकि इसके बेस पे कोई स्टोरी नहीं पूछी जाने इसकी, इसमें डिफरेंस बताइए या पाथ क्या होता है. यहां पे आपसे एक बाइनरी ट्री दे रखा है, ये ए, ये बी, अब ये सी. अब बताइए सी का पाथ क्या है. ठीक है. तो आप इसके पाथ, इसका परफेक्ट वर्ड के लिए आप गूगल से देख लीजिए क्या है इसका डिफरेंस, क्योंकि वर्ड्स यहां हम कैलकुलेशन वाली डिस्कस करने वाली चीजें डिस्कस करें. इनफिक्स एंड पोस्ट एक्सप्रेशन को आपको पोस्टफिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ये हम लोग डिस्कस कर लेते हैं. है ना. चेक गूगल. डिफरेंस की थ्योरी याद करने के लिए. आई डोंट लाइक थ्योरी क्वेश्चन. हियर दिस परफेक्टली रिटर्न एक्सप्रेशन विद हेल्प ऑफ ब्रैकेट्स. थोड़ा छोटा दिख रहा होगा तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूं. ठीक. ब्रैकेट लगे हुए हैं. तो ये एक ब्रैकेट है, इनर ब्रैकेट सबसे पहले हम इसको करें, उसके बाद ये और इनर ब्रैकेट है नंबर 2 पे इसको करें. फिर ये इस ब्रैकेट के अंदर 2 आ रहे हैं, पहला आ रहा है एस्ट्रिक, दूसरा आ रहा है प्लस. तो हम क्या करते हैं, पहले एस्ट्रिक का प्रेसिडेंस हायर है, पहले हम एस्ट्रिक को ले लेंगे 3 नंबर पे, फिर प्लस को करेंगे. पूरा ब्रैकेट सॉल्व हो गया. फिर बचा ब्रैकेट के बाहर 2 ऑपरेटर, एक स्लैश एंड प्लस. तो स्लैश इज हैविंग हायर प्रेसिडेंस, तो 5 नंबर हो गया और सबसे आखिरी में प्लस करेंगे. ठीक है. अब मैं लिखता हूं एक्सप्रेशन. तो मैं एक साथ 2-2 भी सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है. ए प्लस, इसको मैंने लिख दिया BC प्लस, ये हो गया DE प्लस 1 और 2 एक साथ शिफ्ट कर लिया, एस्ट्रिक्स F स्लैश G. राइट. अब मैं 3 को पहले ले रहा हूं, फिर 4th को लेंगे. A प्लस, ये कौन सा शिफ्ट हो गया, कौन सा शिफ्ट होना बाकी है, ये थोड़ा सा आपको फोकस रखना पड़ेगा. इसका ये वाला प्लस शिफ्ट करना है, ये प्लस इधर जाएगा.
ठीक है, क्योंकि इसका ऑपरेंड क्या है, ये पूरा इसका ऑपरेंड है। ठीक है, साथ ही साथ ये ब्रैकेट के अंदर हो रहा, हम ब्रैकेट के बाहर इस स्लैश को भी इधर शिफ्ट कर सकते हैं, जी के बाद में 5 नंबर वाले को। तो हो गया ए प्लस बी सी प्लस डी ई प्लस एफ एस्टिक प्लस उधर जी स्लैश। अब बचा आखिरी नंबर 6 वाला प्लस, वो सबसे आखिरी में चला जाएगा, क्योंकि ये पूरा उसके बाद में प्लस के बाद में पूरा एक पैटर्न हम पूरा सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, एक्सप्रेशन पूरा सॉल्व हो चुका है, तो सबसे आखिरी में जाएगा। तो इस तरह से इनफिक्स से पोस्टफिक्स फॉर्म में हम पहुंच गए। ठीक है, तो द नेक्स्ट क्वेश्चन, सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस विल बी देयर। So I'll answer the following question on the diagram of the binary tree as given below. We will do it. Which are the leaves of the right subtree of node A? Which are the leaves of the right subtree of node A? Right subtree is this side. तो C का कोई सक्सेसर नहीं है, इधर F का कोई सक्सेसर नहीं है, और G H का सक्सेसर नहीं है। तो A पार्ट के क्वेश्चन का आंसर हो गया C कॉमा G कॉमा H कॉमा F। ठीक, ये 4 के सक्सेसर नहीं है, तो ये आपके लीफ होगा राइट सबट्री के, राइट सबट्री ऑफ A। देन राइट द पोस्ट ऑर्डर फॉर्म ऑफ ट्रेवल। से जब इस तरह अभी कोई प्रैक्टिस पेपर आप करें बेटा, क्वेश्चन में पोस्ट ऑर्डर प्री ऑर्डर क्या दे रखा है, आप सारे ऑर्डर की प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, तो पहले हम करते हैं पोस्ट ऑर्डर, फिर करेंगे बाकी। पोस्ट ऑर्डर, लेफ्ट राइट रूट। सबसे पहले हम ए पे पहुंचे, ए रूट है, इसका लेफ्ट, उसका फर्दर कुछ है नहीं, तो ये लेफ्ट वाला लेफ्ट मान लिया। फिर राइट पहुंचे, जिसपे हमको लेफ्ट माने उसी के राइट पहुंचे, दिस इज ऑल्सो रूट। ठीक है, सो B is also root for others, so we'll go to the left of B. ठीक है, the right of B, ये D पे पहुंचे, D is also root, उसका लेफ्ट में आए, E is also root, इसके लेफ्ट में आए। तो सबसे पहले लेफ्ट में आना है, लेफ्ट राइट रूट। अब ये लेफ्ट 3 G हो गया, राइट ये हो गया, और रूट हो गया ये। नंबरिंग करते जा रहे हैं, लिख देंगे एक बाद में एकदम से। फिर ये लेफ्ट है 5, राइट इसका हो गया F, रूट हो गया D, फिर इसका रूट, फिर इसका रूट। तो हमें ये मिल गया 1 2 3, जो भी इस ऑर्डर में लिखे, हम आंसर लिख लें। आंसर आया I C G H E F D B A। फिर बाकी दोनों भी प्रैक्टिस कर लेते हैं प्री ऑर्डर के बाद। इन ऑर्डर, लेफ्ट रूट राइट, ये नंबर हटाए, नया आंसर आने वाला है। लेफ्ट रूट ऑफ दिस I इज A, राइट पहुंचे, पर राइट इज ऑल्सो रूट, सो रूट है तो उसका लेफ्ट पहले आएगा, फिर रूट आएगा। फिर राइट पे पहुंचे, राइट पे D मिला, दैट इज ऑल्सो रूट फॉर द अदर, लेफ्ट पे आए, फिर दैट इज ऑल्सो रूट फॉर अदर, सो वी डोंट राइट दिस, वी विल गो टू द लेफ्ट ऑफ इट, देन लेफ्ट ऑफ E ऑल्सो। एक्सट्रीम लेफ्ट पे पहुंचे तो आपको मिल गया G, आपका होगा G इज लेफ्ट, E इज रूट, राइट इज H। फिर इसके E जिसका लेफ्ट है वो उसका रूट लेंगे, फिर उसका राइट लेंगे। सो इट विल बी लाइक I, नंबर 2 पे A, नंबर 3 पे C, नंबर 4 पे B, 5 पे G, 6 पे E, 7 पे H, 8 पे D और 9 पे F।
ठीक. Then next, post order, in order and pre-order. Root left, right. मैं इधर सॉल्व कर रहा हूं, उधर आप भी सॉल्व कर रहे हैं ना. ठीक. So root is A, left is I, right is B. So B is also root, so here root is coming first. Left, right. राइट पे पहुंचा, राइट इज ऑल्सो रूट, तो पहले आ रहा है रूट, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो सबसे आसान है, वेरी इजी. ए आई बी सी डी ई जी एच एफ. So the best way of doing this is first do yourself, then look at this thing. Next is, what is the right height of the tree when the root level of root is 0? This is ambiguous question. Label 0, 1, 2, 3, 4. ठीक है. So what the problem is with this question, height of the tree, at many places it is given 5, but according to the council it is 4. ठीक है. तो मेरे हिसाब से 5 है, काउंसिल के हिसाब से 4 है, आप 4 लिखें. ठीक है. और जो कि स्पेसिमेन, सॉरी क्या आते हैं, जो बोर्ड के पेपर के बाद स्टूडेंट एनालिसिस रिपोर्ट है, उसके अकॉर्डिंग लास्ट लेवल इज हाइट. ओके, लास्ट लेवल इज 4, सो द हाइट इज 4. सो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. हाँ, अब आया असली क्वेश्चन. अच्छा, इधर थोड़ी सी मिस्टेक है प्रिंटिंग में. Design a class exchange to accept a sentence and interchange the first alphabet with the last alphabet of each word in the sentence, with a single letter word remaining unchanged if the word is the word in the input sentence and separated by a single blank space and terminated by the full stop. Right? तो it is, यहां पे हर वर्ड का पहला लास्ट लेटर इंटरचेंज हो रहा है. इधर थोड़ी सी मिस्टेक ये है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, यानी कोई पूछा नहीं गया. ये जो पहला लेटर लास्ट लेटर बीच में इधर आपको दिख रहा है, क्या बोलते हैं, स्पेस नहीं है. सो डेटा मेंबर, क्लास एक्सचेंज डेटा मेंबर है, जो भी फंक्शन है उसके क्या करके हम लोग बनाएंगे. ठीक. क्लास नेम इज एक्सचेंज. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये मेंबर डेटा है, इनपुट कर रहा है सेंटेंस कोई. अच्छा, ये इधर कंस्ट्रक्टर इज ऑल्सो देयर. एक्सचेंज फर्स्ट एंड लास्ट लेटर, दिस थिंग. एक्सट्रैक्ट ईच वर्ड एंड इंटरचेंज, यानी इस सेंटेंस के एक एक वर्ड को एक्सट्रैक्ट करना है, इंटरचेंज करना है, और डिस्प्ले फंक्शन में दोनों सेंटेंसेस को डिस्प्ले करना है. ओके, विल रेफर टू द क्वेश्चन. So there may be many ways to solve this. कोई वर्ड एक्सट्रैक्शन किस तरीके से करते हैं, दूसरे बच्चे किस तरीके से करते हैं. और यहाँ क्वेश्चन जो फुल स्टॉप है, ना इनपुट में फुल स्टॉप दिखाई दिया, ना आउटपुट में फुल स्टॉप दिखाई दिया. ठीक है. तो फुल स्टॉप वाला कंसेप्ट जो है नॉर्मली प्रैक्टिकल एग्जाम में लेके चलते हैं, वहां पेपर में दिया रहता है. यहां दे रखा था, पर देखिए क्वेश्चन के भी इनपुट आउटपुट में नहीं था, तो हम उसको कंसिडर नहीं कर रहे हैं. ठीक. सो दिस इज अ क्लास exchange, member data, sent and REV, सेंटेंस, दूसरी स्ट्रिंग जिसमें हम एक्सचेंज करके स्टोर करने वाले हैं, और तीसरा शायद लेंथ के लिए था, साइज, स्ट्रिंग साइज, आईएनटी साइज, लेंथ के लिए था आईएनटी साइज.
कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज कर देते हैं। स्ट्रिंग है, नॉर्मली हम डबल कोड लगा देते हैं, एम्प्टी स्ट्रिंग बना दे रहे हैं, आरईबी को एम्प्टी स्ट्रिंग बना दे रहे हैं, साइज को 0 ले लेते हैं। ठीक, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है इधर। कुछ कुछ क्वेश्चन तो इसमें पार्ट है जिसमें दिमाग लगाना नहीं है। आपको इनपुट करना है सेंटेंस, इनपुट करना है सेंटेंस की, इनपुट करना है वर्ड, उसके अकॉर्डिंग कमांड लिखेंगे। यहां सेंटेंस इनपुट करना है, रीड सेंटेंस। स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाइए। system.in, give a message, पूरा लिखे आप। एक मैसेज दिया, सेंट वेरिएबल में इनपुट कराना है, सेंटेंस इनपुट कराना है, नेक्स्ट लाइन लगाएंगे। ठीक, नेक्स्ट लाइन लगाएंगे। अब अगला फंक्शन जहां पे हमें दिमाग लगाना है, एक्स फर्स्ट लास्ट, एक्सचेंज फर्स्ट एंड लास्ट। void x फर्स्ट, नाम नहीं याद रहता फंक्शन का, लास्ट। ठीक है, दिस इज माई बुक, ये सेंटेंस है, इसे में एक एक वर्ड रीड करना है। वर्ड रीड करने के लिए बेस्ट वे एंड इजीएस्ट वे इज टू okay, no problem. The best and easiest way is to use scanner class. स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए, कोई इंडेक्स नंबर का झंझट नहीं होता है। आपको जिस सेंटेंस स्कैन करना है, सॉरी जिस सेंटेंस रीड करना है, उस सेंटेंस को एज ए पैरामीटर पास कर दीजिए। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं। इधर कुछ एक वेरिएबल ले लेते हैं, एल, आगे जरूरत पड़ेगी तो और ले लेंगे। एक वर्ड के लिए ले लेते हैं, रीड करना है किसी भी स्कैनर क्लास के ऑब्जेक्ट से, तो हमें चेक करना पड़ेगा कि वहां रीड करने के लिए कुछ डेटा अवेलेबल है कि नहीं, तो वो हम चेक कर रहे हैं। एसटी ऑब्जेक्ट से चेक करना है, हैज नेक्स्ट फंक्शन लगाएंगे, हैज नेक्स्ट फंक्शन। ठीक, तो सेंटेंस में अगर वर्ड होंगे तो वो रिटर्न करेगा ट्रू, अदरवाइज रिटर्न करेगा फॉल्स। वर्ड st डॉट नेक्स्ट फंक्शन जो हमने लगाया, नेक्स्ट फंक्शन इज टू रीड अ वर्ड। ठीक है, रीड अ वर्ड, बट कहां से रीड कर रहा है? st ऑब्जेक्ट से, एंड st ऑब्जेक्ट क्या है? हमारे सेंटेंस से एसोसिएटेड है, तो रीड कर सकते हैं। अब इस वर्ड की लेंथ क्या है? पहला और लास्ट लेटर इनसे चेंज करना है, बट अगर एक सिंगल लेटर का है तो नहीं करना है, अदरवाइज करना है। तो अगर एल की वैल्यू नॉट इक्वल टू 1 है तब हमें करना है कुछ, नहीं तो नहीं करना। वर्ड में चेंज करना है, वर्ड में क्या करना है? तो लेट मी टेक एन एग्जांपल ऑफ दिस वर्ड बुक, है ना, उसकी लेंथ है 4, इंडेक्स नंबर 3 वाला चाहिए, इंडेक्स नंबर 0 वाला चाहिए, सबसे पहले 3 वाला चाहिए, लास्ट कैरेक्टर विल कम by caret function and index number is l-1। ठीक है, l is 4, इंडेक्स नंबर 3 है। फिर मुझे चाहिए डबल ओ, जो कि इंडेक्स नंबर 1 से शुरू होता है और l-2 तक जाता है। ठीक है, तो सब स्ट्रिंग फंक्शन लगाएंगे, वर्ड डॉट सब, इधर जगह नहीं है,
एक ही कंट्री हो रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम इंडेक्स नंबर 1 एंड L-1। चाहिए L-2 तक, लगाया L-1, एक अपने आप कम कर लेता है, इस बात को हमने कंसीडर करना है। फिर पहला करेक्टर इज ऑलवेज इंडेक्स नंबर 0, ठीक। जो भी वर्ड में है फर्स्ट लास्ट लेटर चेंज हो गया। अब हमें इसको REV स्ट्रिंग में स्टोर कर देना। ये वाइल खत्म हो गया, ये फंक्शन खत्म हो गया। इसके बाद अगला फंक्शन था डिस्प्ले। डिस्प्ले इज डिस्प्लेइंग बोथ ओरिजिनल एंड चेंज स्ट्रिंग। राइटिंग समथिंग, display function and main function. That is not a big deal. We have to check what are the things we are supposed to display. So give a proper message. जो है ओरिजिनल है आपका सेंटेंस, और चेंज है REV। इधर एक चीज हमें ध्यान रखनी थी, दो वर्ड के में स्पेस भी चाहिए, तो यहां पे वर्ड के स्पेस भी ऐड करना था, दैट आई मिस्ड आउट। ठीक है। मेन फंक्शन पब्लिक स्टैटिक वॉइड में, इसके भी मार्क्स हैं। ये जब बच्चे गलत बनाते तब दिक्कत होती है। क्लास का नाम एक्सचेंज, ऑब्जेक्ट का नाम आप कुछ भी रखें, न्यू क्लास का नाम, ये सिंटेक्स होता है। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इन दिस विल बी एम्प्टी ब्रैकेट्स। इनपुट करने के लिए फंक्शन द एक्सेप्ट सेंटेंस, ठीक है। रीड सेंटेंस, तो इनपुट करने का फंक्शन कॉल किया रीड सेंटेंस। फिर ये इंटरचेंज करने का एक्स फर्स्ट लास्ट, एंड उसके बाद आखिरी में डिस्प्ले। इनपुट प्रोसेस आउटपुट के प्रोसीजर को फॉलो करा। फंक्शन जिस ऑर्डर में बने हैं उस ऑर्डर में कॉल करना है। इट्स नॉट कंपल्सरी, वी हैव टू जस्ट सी आपको करना क्या था। ठीक है। देयर इज अ क्लास vowel word to accept a sentence and calculate the frequency of the word that begins with the vowel. So we have to count how many words are starting with the vowel, right? The word in the input strings are separated by the blank space and terminated by the full stop. Okay, this time we don't have to worry, full stop से end हो रहा नहीं हो रहा, हमें just count करना है। तो ये मेंबर डेटा में str है, NFREQ है, क्लास का नाम vowel word है, ठीक है। और ये फंक्शन से हर फंक्शन के बाद लिखा हुआ है क्या करना है। विल जस्ट पिक अप वन फंक्शन एंड स्टार्ट डूइंग दैट, देयर इज नो प्रॉब्लम। तो इफ यू गो थ्रू द क्वेश्चंस, इन एवरी क्वेश्चन देयर इज अ कंस्ट्रक्टर, देयर इज अ फंक्शन टू रीड, देयर इज फंक्शन टू दिस थिंग डिस्प्ले। vowel word is the name of the class, vowel word strfreq। So let's do it. Class name is vowel word. Member data is string str. And another member data is FREQ, which is to count number of vowels, number of words starting with the vowel. This is the function to initialize member data। फ्रीक्वेंसी काउंट करने वाले इनिशियली 0 ले रहे हैं। देन द फंक्शन इज void read str। to input the sentence, same way करना है क्लास ऑब्जेक्ट।
Fine. Give appropriate message. Enter a sentence. str equal to sn dot next line. ये सेंटेंस इनपुट हो गया. Then the important function FREQ vowel frequency. Count the frequency of the word that begins with the vowel. Function name is FREQ vowel. तो ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. किधर लिखा हुआ है? अच्छा, इधर एक ही पेज है, इधर लिखना पड़ेगा. वर्ड FREQ vowel. इस सेंटेंस के पहले हम इधर काउंट करना है, कोई वर्ड एक्सेप्शन नहीं करेंगे. इस सेंटेंस के पहले एक स्पेस जोड़ देते हैं. हर वर्ड के पहले स्पेस होता है. स्पेस का अगला कैरेक्टर वॉवेल है कि नहीं, वर्ड बिगिन हो रहा है वॉवेल से कि नहीं. तो सारे वर्ड के पहले की स्पेस है, तो स्पेस के अगले कैरेक्टर को वॉवेल चेक कर ले. तो हमने स्पेस जोड़ दिया. अब हमने इंडेक्स नंबर का एक लूप चलाया और इस स्ट्रिंग के कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करिए. str.char@i. सॉरी, कहां तक लूप चलाते? लेंथ तक लूप चलाते हैं. str.length. ये लूप चलाया. स्ट्रिंग से कैरेक्टर निकाला. इट विल एक्सट्रैक्ट द कैरेक्टर वन बाय वन. अभी ये कैरेक्टर क्या है? स्पेस है. तो भाई ये अगर स्पेस है तो इसका अगला कैरेक्टर एक नए वर्ड का पहला कैरेक्टर होना चाहिए. तो स्पेस के आगे वाला कैरेक्टर निकाल लेते हैं. str.char@i+1. ये आपके इसके आगे वाला कैरेक्टर निकला. ये कैरेक्टर वॉवेल है कि नहीं? तो you can simply write if ch equal to a or e or I like this. There are 10 conditions. Anybody can write these conditions. There is no problem. ठीक है. और कोई शॉर्टकट में लिखना चाहता है तो शॉर्टकट में लिख सकते हैं. इफ एक वॉवेल की लिस्ट बना ली, IOU AEIOU डॉट इंडेक्स ऑफ CH ग्रेटर देन इक्वल टू 0. ये कैरेक्टर जो हमने स्पेस के बाद एक्सट्रैक्ट किया है, इसको इंडेक्स ऑफ फंक्शन इस स्ट्रिंग में सर्च कर रहा है. मिल गया. इंडेक्स नंबर क्या आएगा? रिटर्न वैल्यू आएगी ग्रेटर देन 0. 0 1 2 3 9 कुछ भी आ सकती है. ऐसा हुआ तो हमने FREQ वेरिएबल की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दिया. ये इफ का खत्म हो गया. ये वाला इफ, यहां एक ही स्टेटमेंट था, है ना. तो इनर वाले इफ में एक ही स्टेटमेंट था, कोई करली ब्रैकेट की जरूरत नहीं है. ये लूप खत्म हुआ, ये फंक्शन खत्म हुआ. ये मेन फंक्शन हो गया. उसके बाद क्या करना है? डिस्प्ले फंक्शन के अंदर आपको डिस्प्ले करना ओरिजिनल स्ट्रिंग, यानी आप लिख देंगे SOPstr फ्रीक्वेंसी SOP FREQ system.out.println. Just give message and display these two variables. In the main function, public static void main, create the object of the class. You will create the object of the class vowel word OB equal to new vowel word. Then call readstr function. Call this function input, then process function, and then display the result, display function. ठीक है. There is no space, so I am not writing. You can write on your own also. This is clear to you, children? Next question is from recursion. Please go through the question. Class word defines a recursive function to perform
string related operations. The class details are given. Class name is words. Member data of the instance variable is text to store a string. W integer variable to store total words. Fine. Words is a constructor to store blank to a string and 0 to the integer W, right? So this constructor, what it is doing, this given. Accept function is to read the text. Note that the sentence may contain more than one blank spaces between words, right? Int find words. To count total number of words present in the text using recursive technique and store in W and return it. Okay. So what this integer parameter is, that we have to think. वो टेक्स्ट जो है दैट इज मेंबर डेटा, जिसमें हमें सेंटेंस से जिसके वर्ड काउंट करने हैं. W इज द मेंबर डेटा जिसमें हमें नंबर ऑफ वर्ड्स स्टोर करने हैं. तो ये टेक्स्ट क्या चीज है, ठीक है. तो ये पैरामीटर क्या है, ये है एक वेरिएबल यहां पे हम डालेंगे जो इंडेक्स नंबर होगा. हम इस सेंटेंस से एक एक कैरेक्टर को चेक करेंगे, काउंट करेंगे नंबर ऑफ स्पेसेस. ओके, that we'll do now. Then we have display function, display original string and total number of words present in W by invoking the recursive function, right? So you might have had a thought how to do it. So let's start discussing. If words text W. Class name is words. It is having two member data, text, T-E-X-T, and INTW. It has a constructor. The question is clearly saying you have to store an empty string to it and 0 to W. In very clear words it is given in the question. Then accept function is there which is reading a sentence, and it is also said the sentence may have one or more characters. So we don't have to do anything with this statement. जो लिखना है इनपुट करने का, उसमें ऐसा कोई चेंज थोड़ी आएगा इसकी वजह से. यूजर डाल रहा है, ठीक है. यानी कि हमें प्रोग्राम में जब रीड करेंगे तब मुझे ध्यान देना है इस बारे में कि कैसे हम इसको चेक करें. void accept word, ठीक. स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया. सिस्टम डॉट इन लिख ही देते हैं. एक मैसेज, टेक्स्ट इक्वल टू SN डॉट नेक्स्ट INT, नेक्स्ट लाइन, सॉरी, ये टेक्स्ट इनपुट हो गया. अब अगला फंक्शन काउंट करने के लिए, फाइंड वर्ड्स काउंट करने के लिए कह रहा है. I have a question paper. You send the first part of the question 6 is different. मे बी आई डोंट नो ना बेटा, क्या अभी तो मिला मेरे को, कॉपी करके मैंने ले आए. ठीक है, ठीक है. लेट्स दिस, यू कैन सेंड दैट क्वेश्चन आल्सो, वी विल डिस्कस. ऑलराइट. फाइंड वर्ड्स. इट इज टेकिंग अ पैरामीटर INT
find words. It is having an integer parameter. Let's set this I, and please be very clear what is I. I equal to 0 initially. Accordingly, we have to write the program. The sentence is, let's say, this is my book. There may be some space afterward or not. We don't know. कैरेक्टर निकाले, कब तक जाना है मुझे आगे? आई की वैल्यू जब लेंथ के बराबर हो जाए. किसकी लेंथ? सेंटेंस, इसको हम चेक कर रहे हैं. तो मुझे रुक जाना है. क्या रिटर्न करना मुझे नहीं पता. एल्स मैंने एक लूप लगाया. while sentence dot char at I is not equal to space. So let's say value of I is 0. 0 पर तो स्पेस नहीं है, तो ये क्या करेगा? I की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देगा. इस लूप में एक स्टेटमेंट लिखा है. रिकर्सिव कॉल नहीं की है मैंने इस जगह. ठीक है, रिकर्सिव कॉल नहीं की है भाई. एंड पे नहीं पहुंचे, ये सपोज कर ये एंड है, मतलब एल ये आखिरी L-1 है, आखिरी कैरेक्टर, राइट. 0 पे स्पेस नहीं है, 1 पे पहुंच गए, 1 पे स्पेस नहीं है, पहुंच गए, 2 पे स्पेस नहीं है, 3 पे स्पेस नहीं है. आगे चलते गए, यहां स्पेस मिला, वर्ड का काउंटर बढ़ा ले. W नहीं, FREQ क्या था? W. तब तो ये W बार बढ़ता जाएगा, फिर से लूप चलाना पड़ेगा. हाँ, अच्छा है, चेंज करना पड़ेगा. करते ऐसे. तो थोड़ा सा इसको मैंने जब किया तो मेरे को मिला कि इधर स्पेस मिलने पे अगर हम काउंटर बढ़ाएंगे, वर्ड काउंट करेंगे, तब तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी. तो मैंने इधर लिखा कि एल्स के अंदर एक इफ लगाया. ये रिकर्सिव कॉल कर लेते हैं. फाइंड वर्ड्स I + 1. तो ये भी कुछ इस तरह से चल रहा है. I की वैल्यू 0, ये फंक्शन कॉल हुआ, 1 हो गया. 1 पे स्पेस नहीं है, फंक्शन कॉल हुआ, 2 हो गया. 2 पे स्पेस नहीं है, फंक्शन कॉल हुआ, 3 हो गया. 3 पे ऐसे स्पेस नहीं है, 4 हो गया. 4 पे स्पेस मिला, तो एल्स में आए और W को बढ़ाया. अभी W क्या हो गया? इस स्पेस पे, माइंड दिस, इस स्पेस पे W की वैल्यू 1 हो गई है. अब एक से ज्यादा स्पेस हो सकते हैं. अब क्या करें? अब इसी एल्स में क्या करते हैं, यहां पे while लूप भी लगा सकते हैं, और इधर मैंने लगा दिया फिर से इफ सेंटेंस डॉट char at I इक्वल टू स्पेस. स्पेस होने पे फाइंड वर्ड I + 1. ठीक है. अभी I की वैल्यू 4 होने पे मेरे को इधर स्पेस मिला, तो ये फॉल्स हो गया. हमने W को बढ़ाया, अभी स्पेस है, तो हमने फिर से फंक्शन कॉल किया. I की वैल्यू कितनी हो गई? 5. 5 पे फिर से स्पेस नहीं है, तो इधर आया, W बढ़ा दिया, गड़बड़ हो जाएगी. इसलिए यहां पे अभी चेंज करना पड़ेगा, इधर लगाना पड़ेगा while लूप. कहां लूप लगाना है, कहां रिकर्सिव कॉल करना है, थोड़ा सा खेलना पड़ेगा इधर. ठीक, यानी क्या हो गया? इधर स्पेस मिलने पे, I की वैल्यू 4 होने पे स्पेस मिला, स्पेस पे हमने W की वैल्यू बढ़ाई. अब क्या, जब तक स्पेस मिल रहा है हम केवल यहां पे I की वैल्यू को बढ़ाते जा रहे हैं. रिकर्सिव कॉल ना करके हम क्या कर रहे हैं? I = I + 1.
ठीक, तो अभी क्या होगा, ये स्पेस है, काउंट किया, अभी स्पेस मिला, आई बढ़ के 5 हो गया, 5 पे फिर स्पेस है, आई बढ़ के 6 हो गया, 6 पे फिर स्पेस है, आई बढ़ के 7 हो गया, 7 पे स्पेस नहीं है, तो ये वाइल लूप से बाहर आ गए। ठीक है, वाइल लूप से बाहर आए, और इसके बाद तो रिकर्सिव कॉल हो नहीं रहा है, तो यानी फिर यहां पे एक चीज और आएगी, वाइल लूप से बाहर आने के बाद इन्हें यहां पे फाइंड वर्ड फंक्शन कॉल करना पड़ेगा। ठीक, ये हो गया। तो यहां पे क्या हो गए थे, 4 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7 पे स्पेस नहीं मिला, तो ये आई की वैल्यू नहीं बढ़ी, इधर 7 हो गया आई की वैल्यू, इधर से रिकर्सिव कॉल हुआ, अब 7 के लिए आगे आ रहा है, और यहां पे 7 पे नॉट इक्वल टू स्पेस है, तो रिकर्सिव करके 8 पे पहुंचा, तो बड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया। ठीक है, एक बार इसको फिर से डिस्कस कर लें सही होने के बाद। एक सेंटेंस लेके इसी सेंटेंस को फिर से डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा साफ सुथरा। अरे भाई, इसमें लिख, ऐसे प्रोग्राम बना रहे हैं, पहली बार कुछ मिलती है उसको लिख, ऐसे एक एक पॉइंट पे करते जाते हैं, करेक्शन मिलता जाता है। तो ये फाइंड वर्ड फंक्शन को हमने, एक सेंटेंस है, दिस इज 2 स्पेस, माई 1 स्पेस, इज 3 स्पेस, और बुक, अब इधर आई की वैल्यू भेजी गई है 0, 0 पे अगर स्पेस नहीं है तो फाइंड वर्ड फंक्शन कॉल किया, 1 हो गई, 1 पे स्पेस नहीं है 2 हो गई ना, 2 पे स्पेस नहीं है 3 हो गई, और 3 पे स्पेस नहीं है 4 हो गई, पर 4 पे स्पेस मिला तो ये एल्स में पहुंचा और डब्ल्यू की वैल्यू को 1 कर दिया। ठीक है, डब्ल्यू की वैल्यू को 1 करने के बाद फिर से यहां एक लूप चल रहा है जब तक स्पेस हो, तो आई की वैल्यू 4 है, 4 पे स्पेस है तो आई प्लस प्लस होके 5 हो गया आई की वैल्यू, 5 पे फिर स्पेस है तो आई की वैल्यू 6 हो गई, और 6 पे स्पेस नहीं है, ये कंडीशन वाइल लूप से बाहर आ गई, फिर ये फंक्शन फाइंड वर्ड कॉल हो गया और वो 7 पे पहुंच गया, 7 पे वाई है, 7 यहां भेजा, आई की वैल्यू 7 हो गई, 7 पे वाई है, स्पेस नहीं है, तो फिर फाइंड वर्ड कॉल हुआ, 8 हो गया आई की वैल्यू, आई पे 8 पे स्पेस मिला, तो ये कंडीशन फॉल्स है, तो इधर आके डब्ल्यू की वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है, और डब्ल्यू की वैल्यू बढ़ने के बाद ये आई हम बढ़ाते जाएंगे जब तक स्पेस मिलता जाए। ठीक है, अब हम ये माने कि आखिरी फुल स्टॉप से टर्मिनेट हो रहा है, यानी क्वेश्चन में दिया भी था कि आखिरी में फुल स्टॉप है, यानी कि एंड में स्पेस नहीं है, तो पर इधर ऐसा 3 बार होगा तो डब्ल्यू की वैल्यू 3 होगी, जब लेंथ के बराबर हो गए तो आखिरी वर्ड के लिए काउंट है ना, डब्ल्यू की वैल्यू नहीं इंक्रीमेंट हुई होगी, इसलिए यहां रिटर्न कर देंगे 1। ठीक है, या यहां डब्ल्यू की वैल्यू को हम एक बार बढ़ा के तब रिटर्न कर दें, रिटर्न डब्ल्यू प्लस 1 कर देते हैं। ठीक, आई थिंक द फंक्शन इज वॉइड टाइप, ध्यान भी नहीं दिया, याद भी नहीं, पीछे रिटर्न करने की जरूरत ही नहीं है, तो बाकी जगह मैंने रिटर्न नहीं करा, रिटर्न वजह डब्ल्यू इक्वल टू डब्ल्यू प्लस 1 कर दीजिए। इसके बाद जो भी फंक्शन है अगला, तो कह रहे हैं वॉइड रिजल्ट, यानी दोनों चीजें डिस्प्ले करनी है, डिस्प्ले करने से पहले मुझे फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। सेंटेंस फाइंड वर्ड्स
इधर 0 भेजना है, ठीक है। अब यहां प्रॉब्लम क्या आ रही है, पीछे देखते हैं क्वेश्चन होता है, फिर आगे जाते कुछ और, मतलब तब तक वो माइंड से निकल जाता है। अभी मैंने पीछे देखा तो ये रिटर्न टाइप है, इसमें रिटर्न टाइप है, तो फिर हमें चेंज करना पड़ेगा क्वेश्चन में अकॉर्डिंगली, ठीक है। क्या बताएं, एंट्री लगाना पड़ेगा, यहां रिटर्न W+1 करना पड़ेगा, यहां पे भी रिटर्न लगाना पड़ेगा, जहां जहां फंक्शन कॉल हो रहा है सबके आगे रिटर्न कीवर्ड लगाना पड़ेगा। जबकि इस क्वेश्चन में जो एक्यूमुलेट हो रही है वैल्यू, वो वैल्यू मेंबर डेटा है, तो ये वॉइड टाइप का होना चाहिए था, अननेसेसरी रिटर्न टाइप इसमें दे रखा है। तो इसको कॉल कर रहे हैं, W में ही रिटर्न वैल्यू रिसीव करे, ठीक है। फिर SOPW नंबर ऑफ वर्ड्स, फिर मेन फंक्शन कॉल कर लेंगे। मेन फंक्शन में क्या करना है, जो भी क्लास का नाम है ऑब्जेक्ट बनाइए, इनपुट और डिस्प्ले के फंक्शन कॉल कर लीजिए। पीछे चले जाओ भाई, हैंग हो गया, ठीक है। तो इनपुट और डिस्प्ले के फंक्शन बना के कॉल कर लेंगे। ये जो स्पेसेस की इसमें बात हुई है, वो स्पेसेस दो वर्ड्स के बीच की बात है, ठीक है। तो वो प्रोसीजर फालतू में हमें करने की जरूरत नहीं है,